الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ذل رضا الہی کے لیے اصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ابھی ہمارا توضیح التوقید کے اندر جو مفتی صاحب نے پیچھے الفاظ استعمال کیے یا آگے الفاظ آئیں گے مشکل الفاظ، تو ان کا باب چل رہا ہے۔ یہ پیچھے بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور آخری ہماری جو بحث ہوئی تھی، جو مفتی صاحب نے بات کی تھی، وہ کی تھی علم ابجد کے حوالے سے۔ تو علم ابجد کے حوالے سے دیکھیے کہ یہ پوری گنتی علم ابجد کی لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے الف کی گنتی تو اس کے اندر آ جاتی ہے نا، اکائیوں کے ولی اب جد حوز حتی، یعنی اس طرح سے 10 تک۔ اب یہ مزید آگے پھر پوری اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے کہ شروع میں ہا آ جائے تو یہ بھی 2 ہی مراد ہے، یہ ہا سے کا مطلب کچھ اور نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ پوری 100 تک بلکہ 1000 تک گنتی لکھی ہوئی ہے مفتی صاحب نے۔ اور یہ دیکھیے ہا با، ہا سے مراد تو کوئی نہیں، با سے مراد 2، 1 2، اور پھر یہ 1 2 3 4 اس طرح سے ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے جب دیکھتے ہیں تو پھر آگے آپ کی 10 کے فوراً بعد آپ کی پھر 11 12 بھی شروع ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیے ہا کاف، بلکہ اس سے بھی پیچھے یہ دیکھیے 2 3 4 5 6، اس طرح سے یہ پوری آگے 30 40 50 اس طرح پوری یہ گنتی لکھی ہوئی۔ جس طرح یہ کب ہے، کب کا مطلب ہوتا ہے کاف کے اعداد 20 اور با کے 2، تو اس طرح سے یہاں سے یہ 22 یہ گنتی جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے پیچھے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ید یب یا اکیلا، دیکھیے یا سے مراد 10، آگے پھر یب سے مراد 12، دال سے مراد چونکہ 4 ہوتے ہیں تو 14، اس طرح سے یہ گنتی پوری یہ لکھی ہوئی ہے۔ آگے مزید صفحات کی جانب آپ چلیں گے تو یہ 31 32 33 حتیٰ کہ سینکڑوں کے اندر بھی یہ گنتی پھر آتی ہے، اور یہ آگے پھر 1000 تک اس طرح سے یہ گنتی جاتی ہے۔ یہ مزید آگے صفحے آپ پلٹاتے جائیں گے تو آپ کو یہ دیکھیں کاف واو ہے، کاف کے اعداد اور واو کے اعداد ملا کر آپ کے جتنے بنتے ہیں آپ وہ اعداد یہاں پر پڑھیں گے۔ دیکھیں کاف کے 20 اعداد بنتے ہیں، تو اور واو کے 6، تو یہ دیکھیے یہ کاف واو سے مراد 26 ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ بھی گنتی کا ہی حصہ کہہ لیں کہ یہ کاف ہے، ٹھیک ہے، کاف ہا کے 8 ہوتے ہیں، کاف کے 20 ہوتے ہیں، 20 اور 8 28۔ اس طرح سے آگے مزید بڑھتے جائیں گے، آپ آگے صفحات دیکھتے جائیں گے۔ اس کے اندر یہ گنتی مفتی صاحب نے یوں سمجھے گا پورے کا پورے ٹیبل بنا دیے۔ اگر آپ ان کا کوئی حاشیہ لگانا چاہیں، از خود لکھنا چاہیں تو آپ کو از خود لکھنے کی اس کے اندر
इजाज़त है, यानी आप अपनी कॉपियों वगैरह पर इस हवाले से बना सकते हैं वगैरह। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आकर यहाँ तक मुफ्ती साहब ने ये गिनती लिखी। अब उसके बाद अभी भी आगे गिनती तो कुछ ना कुछ अभी भी इस्तेमाल होगी। तो दाइफ़ अज्ज़ाए सात वस्ती, यानी इनके वस्ती, इन अज्ज़ाए वस्ती की तदाइफ़ लेना, अब इनकी इजाफ़त लेना। वो किस तरह से होता है तरीक़ाकार? वो ये होता है जितने अदाद तक आपने इजाफ़त लेनी है उतने अदद को उतने पर ज़रब करते हैं, दूसरे अल्फाज में जमा करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपने 5 की लेनी है तो 5 मज़ीद मिला दें, फिर आगे 5 मज़ीद मिला दें, फिर आगे 5 मज़ीद मिला दें, या फिर ज़्यादा मरतबा है तो उतने मरतबा पर उसको ज़रब दे दें, तो वो एक पूरा टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये वो किया गया है, ये तदाइफ़ की गई है, इनको आपस में ज़रब किया गया है। और ये यहाँ पर इल्मी अबजद की लैंग्वेज के अंदर ही इसको इस्तेमाल किया गया। आगे मज़ीद चूँकि हमारा बाब वही चल रहा है तो आगे मज़ीद उसी को लेकर मुफ्ती साहब आगे बढ़ते हैं कि इशारिया की तरफ। ये अल्फाज कई जगह पर इस्तेमाल होता है इशारिया। तो इशारिया मंसूब अलैह है तरफ इशार के जो जमा अशर की है, यानी कसूर इशारिया जिसमें किसी चीज़ के 10 हिस्सों में से कोई हिस्सा बताना मकसूद होता है। अब ये तो आम फाम सी बात है, इशारिया हम इतना इस्तेमाल करते हैं। और इसकी अलामत अशर का आयन है, यानी आयन जब अलामत लगी होगी तो ये इशारिया की अलामत होगी। अब देखिएगा आगे आएगा भी सही, यहाँ पर तो खैर नहीं लगा हुआ, आगे आएगा वहाँ पर आयन की अलामत होगी तो उससे हमारा समझिएगा ये आगे फिर इशारिया के बाद वाली रकम है, जिसको हम उर्दू में अमूमी तौर पर जब लिखते हैं तो हम पॉइंट लगा देते हैं, बल्कि इंग्लिश में भी पॉइंट लगा देते हैं, जो आसानी के लिए बतौर हमज़ा लिखते हैं, यानी आयन को मज़ीद छोटा करते हैं और हमज़ा की शक्ल का बन जाता है। अंग्रेज़ी किताबों में इशारिया के लिए सिफ़र मुसम्मत लिखते हैं। अब चूँकि उस दौर में जो गिनती थी उसके अंदर जब सिफ़र लिखना होता था तो उस वहाँ पर उसको इशारिया लिखते थे, जिस तरह हम इशारिया लिखते हैं नुक्ता। तो यहाँ पर मुफ्ती साहब ने यही फरमाया कि वो जो सिफ़र हम लिखते हैं तो वही यहाँ पर इशारिया उस तरह लिखेंगे। हमज़ा के बाद जो अदद लिखा वो अदद सही का 10वां हिस्सा बताता है। अगर इकाई हो तो दहाई में से उतना हिस्सा मुराद हुआ, और अगर मरतबा दहाई हो तो सैकड़े से हिस्सा बताएगा। अगर सैकड़ा हो तो 1000वें हिस्से का पता देगा। मसलन 2 इशारिया और 2, ये आगे फिर इशारिया ही है, और 2 के बाद डबल इशारिया, इसका हासिल 1 है, यानी 10 में से 200 में से 20, अच्छा ठीक है, मसलन 2 इशारिया, 20 इशारिया और 200 इशारिया, यानी 10 में से, अब जो कि 2 है ये 10 में से है 2, 100 और 200 में से 20,000 में से, ठीक है, ये 200 में से और ये 20,000 में से। 200 इशारिया में दाएं तरफ सिफर का कुछ हासिल नहीं। अब क्या, यानी इशारिया के बाद अगर आप रकम लिखेंगे तो उसके अगर सीधी जानिब इशारिया कोई ज़ीरो होगा उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अलबत्ता बाएं जानिब सिफर से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। मसलन 2 इशारिया और यानी इशारिया 2, ठीक है, यहाँ पे इसको यूँ पढ़ेंगे, इशारिया 2 और इशारिया 02 का हासिल 10 में से 2 और 100 में से 2। यहाँ पे वैसे 10 में से 2, इशारिया 2 का मतलब 100 में से 2 और 1000 में से 2 होगा, यानी 002, इशारिया के बाद 002 होगा तो 1000 में से 2 होगा। और हमज़ा के बाएं जितने अदाद भी होंगे वो अदद सही होंगे। मसलन 75 इशारिया 620 के माना है कि 75 सही, 1000 में से 620वां हिस्सा, कसूर इशारिया की जमा तफरीक ज़रब तकसीब सब मुरवज हैं और सब की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मुख्तसर बयान इसका भी लिखा जाता है। जमा कसूर इशारिया, कसूर इशारिया की जमा हो और हासिल जमा में भी अलामत इशारिया इसके नीचे रखना चाहिए। इशारिया से जिस कदर दहाई हासिल हो इसको स्याम में सही अदाद में जमा कर देना चाहिए। मसलन
ہم چاہتے ہیں کہ اعداد مفصلہ ذیل کو جمع کریں، تفریق قصور اشاریہ بھی مثل تفریق سیاہ ہی ہے، یعنی جس طرح صحیح دو اعداد کی ہم تفریق کرتے ہیں تو اسی طرح سے اشاریہ اعداد کی بھی ہم تفریق کر لیں گے۔ اس میں بھی حمزہ آمنے سامنے لکھنا چاہیے، اور جہاں عدد تنگی کرے بدستور یہاں بھی صفر سمجھنا چاہیے، اور بائیں جانب سے ایک لینا چاہیے جو اس مرتبہ میں اس کے قائم مقام ہوگا، یعنی وہ 10 کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جس طرح وہ آ کر یعنی 10 کی ویلیو رکھتا ہے۔ وہ ضرب اشاریہ کا قاعدہ یہ کہ مضروب و مضروب علیہ کو بطور سیاہ ضرب دیں، اور مضروب و مضروب فی کے مراتب اشاریہ شمار کر کے حاصل ضرب میں اتنے ہی عدد کے بعد حمزہ رکھیں، یعنی اتنے عدد کے بعد اشاریہ رکھیں۔ یعنی سمجھا یہ رہے ہیں کہ اگر اب دو اشاریہ والی علامتوں کو آپس میں ضرب کر رہے ہیں تو ان کو آپس میں سب سے پہلے ان کا اشاریہ ہٹا دیں، لیکن یہ دیکھ لیں کتنے عددوں کے بعد اشاریہ ہے، اور اس کو دائیں سے بائیں کی طرف گننا ہے، یا دوسرے الفاظ میں دیکھیں کہ اشاریہ کے بعد کتنے عدد ہیں۔ تو اب اشاریہ کے بعد جو اشاریہ کے انڈر عدد آتے ہیں، یعنی صحیح عدد کوئی بھی نہیں بن رہا ہے، ایک سے چھوٹا ہی بن رہا ہے، تو وہ کتنے ہیں پہلی رقم میں دوسری رقم میں، تو دونوں کے جتنے اعداد بنتے ہیں ان کی تعداد محفوظ کر لیجئے۔ اب ضرب کرنے کے بعد اتنے اعداد کے بعد دائیں طرف سے گنیں گے، اتنے اعداد کے بعد آپ اشاریہ کی علامت لگا دیں۔ اگر حاصل ضرب میں ہندسوں کی تعداد مراتب اشاریہ سے کم ہو تو حسب ضرورت بائیں جانب اب صفر بڑھا لیں۔ مثلا 13.853 کو جو ہے اشاریہ اور 01072 میں ضرب دینا چاہتے ہیں، اس طرح عمل کریں۔ اگر دو مرتبہ کے بعد حمزہ ہو تو پھر اس طرح کریں گے، کیونکہ جیسے 10 کے بعد آ رہا ہے اشاریہ، یہاں پر سرے سے 0 کے بعد یہ آ رہا ہے۔ والا حاضر قیاس حاصل ضرب یہ ہوگا۔ اب پورا اس طرح کرنے کے بعد اب دیکھ لیں گے کہ کتنے رقموں کے بعد اشاریہ تھا، کہ 1 2 3 اور نیچے والی میں 1 2 3 4 5۔ اب جو جواب آیا 1 2 3 4 5، اب 5 اعداد کے بعد آپ کا اشاریہ آ جائے گا۔ بلکہ نہیں، ٹھیک ہے، 1 2 3 اوپر 3 رہ گئے، نیچے والے 1 2 3 4 5 5 ہے نا، نیچے 5 اوپر 3، 1 2 3 4 5، اور پھر اوپر والے 3 مزید ہم نے لینے 1 2 3، اور اس کے بعد پھر اشاریہ کی علامت آئے گی۔ تقسیم قصور اشاریہ، اس کی دو صورتیں مقسوم علیہ عدد صحیح ہو، مقسوم علیہ قصور اشاریہ ہو۔ اگر مقسوم علیہ جس پر تقسیم ہو رہا ہے یہ عدد صحیح ہو تو تقسیم کا عمل مثل عدد صحیح ہوگا، اور خارج قسمت علامت اشاریہ اس وقت رکھیں گے جب عدد صحیح کی تقسیم ہو جائے۔ اور اگر تقسیم کے بعد کچھ بچے، جس طرح اس مثال میں 7 3 بچا ہے، تو جتنے مرتبے تک یہ اشاریہ لینا ہے تو صفر بڑھاتے جائیں، اوپر ایک اور صفر لگاتے جائیں اور بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ کچھ نہ بچے، یا دائر ہو جائے، یا جتنے مرتبے تک لیا ہے اس کا در عدد حاصل ہو جائے۔ دائر ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہی عدد آ جائے، یعنی اب چیز یہ کہ ایک عدد پر تقسیم کیا اور نیچے پھر وہی عدد بچا، پھر بار بار تقسیم کرنے پر بار بار وہی عدد بچ رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ اب یہ مزید آگے تقسیم اس طرح ہوتا رہے گا، پھر وہاں پر اس کو تقسیم بند کر دیں۔ اس وقت میں حاصل قسمت میں اس عدد پر صفر لکھ دیتے ہیں، اور اگر مقسوم علیہ کسر اشاریہ ہو تو مقسوم اور مقسوم علیہ میں دائیں طرف اشاریہ اور اتنے درجے تک ہٹا دیں کہ مقسوم علیہ عدد صحیح بن جائے۔ اس کے بعد حسب تفصیل بالا تقسیم کریں۔ مثلا یہ 92.27 کو 30.2 پر تقسیم کرنا ہے، تو دونوں میں سے اشاریہ ایک ایک مرتبہ دائیں طرف ہٹا لیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ 92 کے بعد اشاریہ نہیں ہے بلکہ مزید ایک اور عدد کے بعد ہے، یعنی 922 کے بعد 7 0۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ دائیں طرف 0 لگا دی جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب اس کو 30.2 تھا تو اس کو 302 بنا دیا۔ اس پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اس پر عمل کریں، اس طریقہ سے جتنے مرتبے تک اشاریہ لینا چاہیں لے کر عمل کر لیں۔ یہ حاصل قسمت سے عمل خود ہی تمام ہو جائے اور برابر ہو جائے، اور بعد تقسیم کچھ نہ بچے،
या दायर हो जाए। अब रहा इशारिया की तरफ सितीनी की तहवील। तो इसका कायदा ये है कि जितने आदाद सितीनी को इशारिया की तरफ तहवील करना चाहें, इसको या में ज़रब दें। या से मराद 10, और जो कुछ हासिल हो इससे पहले मरतबे की अदद को ख़त्ते हिलाली में घेर दें और हिंसा में लिख दें, बाकी को फिर या में ज़रब दें। वाला हाज़ल क़ियास, जितने मरतबे तक लेना चाहें इस से एक मरतबा ज़ायद अमल करें। मसलन 4 दर्जे इशारिया तक लेना है तो 5 दफ़ा अमल करें और 5वें मरतबा से रफ़ा व इस्क़ात का फ़ायदा उठाएं। मसलन हम चाहते हैं कि कह नौ, ठीक है, इशारिया हा काउ, इशारिया की तरफ तावील करें, तो इस तरह अमल करेंगे। ये पूरा यहाँ पर अमल करके आपको बताया गया, जो में ताबी आपको फिर दिखा दिया गया। इसी तरह जिस कदर मरतबे तक चाहें में ज़रब देते जाएं, और इस कदर अमल का हासिल ये हुआ कि ये जो आगे जवाब है ये आ रहा है। और आगे मुझसे अगला एक लफ्ज़ से इरशाद फरमाते हैं, 9 तक तदाइफ लें। तदाइफ लेने का 2 कायदे हैं। एक इस अदद को 2 में ज़रब दें, फिर 3 में, फिर 4 में, अला हाजा 9 तक हर अदद में ज़रब दें। हर अदद के हासिल ज़रब को तरतीब वार लिख लें। इसमें अगरचे अमल करने में आसानी है मगर तवालत है। दूसरा तरीका यह है कि तावील सित्तीनी से जो इशारिया हासिल हुआ हो इसको लिख लें, इसके मुकाबिल अलिफ लिख लें, फिर हर अदद को दुगना कर लें और इसके सामने बा लिख लें, फिर बा और अलिफ को जमा कर लें। इसके बाद इसके मुकाबिल जीम लिखें, फिर जीम अलिफ को जमा कर डालें। अला हाज़ल क़ियास, तो अलिफ को जमा करके देखें कि अगर बेआइनी ही वही अदद आ गया तो अमल सही जाने, और वरना यकीन माने कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। अदद मज़कूर के तज़ाइफ़ इस तरह होगी, यह आगे फिर तदाइफ़ करके दिखाई गई है। बिलहाज रफ़ा व इस्क़ात, आमाली सितीनिया इशारिया सब में दस्तूर है। सवालिस और राबे में अगर अदद निस्फ़ से ज़्यादा हो तो इसको एक समझ कर मरतबा साबिक में बढ़ा लेते हैं। अगर निस्फ़ से कम होता है तो इसको कअल्लम यकुन कर देते हैं, यानी इसको सिरे से मिटा देते हैं। मसलन कह नौ इशारिया हा कऊ में अगर सिर्फ सालिसा तक लेना चाहें तो चूँकि 26 राबिया है, ये निस्फ़ से कम है, इसलिए साकित करके सिर्फ कह नौ इशारिया हा लेंगे। और अगर कऊ की जगह लौ या मऊ होगा तो इसको रफ़ा करके कह नौ और इशारिया वाव लेंगे। निस्फ़ुन नहार मरसदी, यानी रसदगाह में जो निस्फ़ुन नहार का वक्त दिया है। आज का रसदगाह यूरोप से जो छपती है इसका नाम नॉटिकल अलमैनिक है। यह किताब ठीकर स्पीकिंग या दूसरे अंग्रेज़ी कुतुब फरोशों से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में तकरीबन 3 रुपए को मिलती है। ये मुफ्ती साहब ने अपने दौर के हिसाब से लिखा है, वरना आजकल तो 3 रुपए की कोई तकरीबन चीज़ नहीं मिलती इस तरह की। इसमें हर महीने के निस्फ़ नहार का वक्त इस महीने के पहले सफ़ा 8वें कालम में होता है, जिसकी सुर्खी इक्वेशन ऑफ टाइम टू बी एडेड टू प्रिंट टाइम, और बाज़ महीने में सब ट्रैक्टेड अप प्रिंट टाइम होती है। बाज़ में बीच में ख़त देकर ऐड और सब ट्रैक्टर दोनों लिखा होता है। तादील अय्याम अगर निस्फ़ नहार वस्ती पर बढ़ाई जाए ताकि निस्फ़ नहार हकीकी हासिल हो तो इसको ज़ायद कहते हैं। ये वो तादील है जहाँ ऐड लिखा होता है। आमज़ी के तादील हासिल हाजिर साबिक से कम हो या ज़्यादा, अगर कम हो तो मुतनाकिस है और अगर ज़्यादा हो तो मुतज़ायद। और अगर निस्फ़ नहार का वस्ती से तादील घटाई जाए ताकि निस्फ़ नहार हकीकी का वक्त हासिल हो, इसको तादील नाकिस कहते हैं। यानी वैसे समझ तो आ गई है कि तादील नाकिस किसको कहते हैं। अब चूँकि यहाँ पर सिर्फ अल्फाज की तब्दीली है और अल्फाज यानी जुमले जो हैं मुफ्ती साहब पुरानी उर्दू के इस्तेमाल फरमा रहे हैं, वरना चीज़ यही है कि अगर तो तादील ऐसी हो कि उसको असल जो आपके पास वक्त आया हुआ है बलदी उसमें से माइनस करना पड़े तो इसको नाकिस कहते हैं, और अगर ज़्यादा करना पड़े इसको ज़ायद कहते हैं।
माजी ये कि तादील मौजूद साबिक से ज़ायद हो या कम, तो इस उसूल से तादील की 4 किस्में हुई। एक है ज़ायद मुतज़ायद, यानी अभी तादील ज़ायद है, इसको जमा करना पड़ रहा है और आगे फिर इसकी मिकदार में इजाफा हो रहा है। आगे तादील ज़ायद और मुतनाकिस, ज़्यादा तो है लेकिन ऐसा ऐसा इसमें कमी आ रही है। आगे नाकिस मुतज़ायद, तादील नाकिस है यानी उसको माइनस करना पड़ रहा है, इसके नुक्स के अंदर ज़्यादती आ रही है, इसको मज़ीद ही आगे बढ़ रही है अगली तारीख में। और आगे है नाकिस मुतनाकिस, कि तादील वैसे भी नाकिस है और मज़ीद नुक्स की तरफ जा रही है। और यह कि 25 दिसंबर से 11 फरवरी तक और 15 जून से 26 जुलाई तक है। दोम यह कि 12 फरवरी से 5 अप्रैल और 27 जुलाई से 1 सितंबर तक है। सोम यह कि 16 अप्रैल से 15 मई तक और 2 सितंबर से 3 नवंबर तक है। चारम यह कि 16 मई से 14 जून और 4 नवंबर से 24 दिसंबर तक है, जो इस नक्शे के मुलाहिज़े से बहुत वाज़ेह होगा। तादील अय्याम की ज़रूरत जुमला औकात में होती है। गुरूब के लिए तो बेआइनी यही तादील काम आती है। जो आपके पास तादील दी गई, जो तादील दी गई यही तादील यानी कि बेआइनी यही काफ़ी है, जो अलमैनिक में लिखी होती है। इसलिए कि तादील लंदन के निस्फ़ नहार की होती है और हिंदुस्तान में वो वक्त 5:30 बजे शाम का होता है और गुरूब से बहुत ज़्यादा करीब होता है, इसलिए बेआइनी वही तादील काम आती है। और तुलू के लिए 2 तादीलों के दरमियानी तादील से काम लिया जाता है। इसके निकालने का कायदा यह है कि 2 तादीलों का तफाजुल लेकर इसको तनसीफ कर दें, फिर देखें कि अगर तादील मुतज़ायद है तो ज़ायद मासबक पर बढ़ाएं, यानी जो पहले पीछे बयान हुआ उस पर इजाफा करें। अगर मुतनाकिस है तो तादील साबिक से कम करें। फिर अगर तादील ज़ायद है तो वक्त पर बढ़ाएं, अगर नाकिस है तो वक्त से घटाएं। और इज़िंजाय कि हर वक्त तादील एक ही नहीं रहती बल्कि बदलती रहती है, इसलिए तहकीक का तकाजा तो ये था कि असर इशा फजर के लिए भी तादील मौदल निकाल कर अमल करते, यानी तफाजुल तादीलैन को कद पर तकसीम करके 1 घंटा की तादील मालूम करते और फिर तकरीबन 1.5 घंटे की तादील मगरिब की तादील पर ज़ायद करके या घटा करके असर और इशा के लिए बढ़ाते या घटाते। यूँ ही तुलू की तादील पर 1.5 घंटे की तादील कम व बेश करके फजर के वक्त पर बढ़ाते या घटाते। अगर इसमें बहुत तवालत है, अगर चाहिए कि इसमें बहुत तवालत है, इसलिए मगरिब ही के तादील असर और इशा के काम में लाते हैं और तुलू की तादील से वक्त फजर मौदल करते हैं कि तफाजुल सिर्फ सेकंड या इसके अज्जा से ज़्यादा नहीं होता। अकबर यहाँ पर मुफ्ती साहब ने तादील अय्याम निकाल कर बताई गई जनवरी के अंदर कितनी है। देखिए ज़ायदा लिखा हुआ है कि तादील अय्याम ज़ायद है, आगे फरवरी है। इसी तरह से ये पूरे साल की तादील जो है यहाँ पर बताई गई है, पूरे 12 सफ़ात और 12 किताबों के। वैसे तो आपको PDF भी भेज दिया गया था, दोबारा भी आप डाउनलोड कर फरमा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर वो तादील मुकम्मल होगी जो ऊपर तादील बयान की गई थी। अब यहाँ पर मुफ्ती साहब एक और अंदाज में तादील बयान कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं दिन की तादील और रात की तादील, आने वाली रात की तादील का बिल्कुल दरमियाना वक्त लेना, और वो यहाँ से ले रहे हैं। देखिए 1.175, 1.185। खैर इशारिया के बाद रकम पूरी नहीं पढ़नी चाहिए, अकेला अकेला और पढ़ना चाहिए उसूली तौर पर। अब इस तरह से ये भी जो है ये देखिए दिसंबर तक 12 महीने इसके ये कंप्लीट हुए। और यहाँ तक ये हमने तादील अय्याम के बारे में पढ़ा और आज का हमारा सबक यहीं तक था। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आगे जो है फिर हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है हुज़ूर, फिर अभी हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए।
ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔